In last class we have studied that about significant figures. We are studying class 11 chemistry. Chapter 1 is going on some basic concepts of chemistry. Students, we have studied earlier up to significant figures. Today's topic is laws of chemical combination. Laws of chemical combinations means there are some certain rules according to which the chemical compounds react to form the new compounds. It means that reactions happen. In this topic, the first law is law of conservation of mass. Law of conservation of mass. In class 10th you have studied about law of conservation of energy. What was it? It was that energy can neither be created nor be destroyed. That means in any process energy, you cannot create the energy and you cannot destroy the energy. For example, in dam, the potential energy of the water is transformed into kinetic energy and then transformed into electrical energy. Means energy can neither be created nor be destroyed. It conserve, ये सुरक्षित रहती है, सेफ रहती है. सेम रूल यहाँ फॉलो होता है केमिस्ट्री में कि जब भी कोई रिएक्शन होती है, केमिकल्स आपस में रिएक्ट करते हैं, दूसरे केमिकल बनाते हैं, कोई भी रिएक्शन हो जाए, कितनी लंबी ही हो जाए, कितनी देर तक हो जाए, लेकिन जो मास होता है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता. सो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन mass is always conserved. Means the total mass of the reactant before the reaction is always equal to the total mass of the product after the reaction. Take an example, a simple example. For example, CaCO3, that is calcium carbonate. When heated, it forms CaO plus CO2, calcium oxide and carbon dioxide. So when we find the molecular mass of CaCO3, the atomic mass of calcium is 20. The atomic mass of calcium is 40. For carbon it is 12, and the atomic weight of oxygen is 16. Here 3 atoms are present. That's why the total mass will be 16 into 3. So 40 plus 12 plus 48. It will be 100 unit. Now, if we add the products here in left hand side, they are reactants. On here, they are products. CaO, calcium oxide. You know the atomic weight of calcium is 40. The atomic weight of oxygen is 16. On adding, it becomes 56. Here, the atomic mass of carbon is 12. The atomic mass of oxygen is 16, and here 2 atoms are present. That's why the atomic mass, the molecular mass will be 16 to the 32, and on adding we will get 44. On adding these 56 and 44, it will become 100 unit. Now students, you can see that आप देख रहे होंगे कि जो रिएक्टेंट्स का टोटल मास है वो 100 यूनिट है, जो प्रोडक्ट का टोटल मास है वो 100 यूनिट है. इट मीन्स दैट the total mass of the reactant before the reaction is always equal to the total mass of the product after the reaction. Here the law of conservation of mass is verified. एक बात कहना चाहूँगा स्टूडेंट, you have to learn the atomic number and atomic weight at least up to 20. Means from hydrogen to calcium, atomic number, symbol, atomic number and atomic weight, because it is compulsory, it is mandatory. अगर आपको ये नहीं आते हैं प्रॉब्लम होगी आगे. डन, ठीक है. अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बाद फिर लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन. लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, law of
definite proportion, yes, or law of constant proportion. According to this law, student, if you want to make your notes, then pause the video and then write it down. जो भी मैं बोल रहा हूँ अगर आप लिख लेते हैं तो वो नोट्स की तरह ही आप उसको यूज कर सकते हैं. डन. लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन. अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, आप कोई भी कंपाउंड चाहे जहाँ से लें, कंपाउंड इज टेकन फ्रॉम एनीवेयर, द रेशियो ऑफ मासेस ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स, यानी इसको बनाने वाले जो एलिमेंट्स हैं उनके मासेस में जो रेशियो होता है वो हमेशा एक जैसा ही रहता है, कांस्टेंट रहता है, नियत रहता है. ये भी बात फिर से देखते हैं. मैं कह रहा हूँ कि कोई भी अकॉर्डिंग टू दिस लॉ कोई भी कंपाउंड चाहे जहाँ से लिया गया हो, एनी कंपाउंड इज टेकन फ्रॉम एनीवेयर, देन the ratio of the masses of its constituent elements always remain constant. अगर आप चाहें तो डेफिनेशन लिख भी सकते हैं. A compound is taken from anywhere. A compound is taken from anywhere. The ratios of masses of its constituents elements remain constant. A compound is taken from anywhere, the ratios of masses of its constituent elements remain constant. यानी एक कंपाउंड चाहे जहाँ से आपने लिया हो, उसको बनाने वाले जो एलिमेंट है उनके मासेस में एक रेशियो जो होता है वो हमेशा सेम होता है. इसका एग्जांपल लेते हैं. टेकिंग एन एग्जांपल, H2O, जिसको आप वाटर बोलते हैं, आप कहीं से भी इसको ऑब्टेन कर सकते हैं, whether it be सी वाटर, whether it be ओशन वाटर, whether it be लेक वाटर और रिवर वाटर. द रेशियो ऑफ मासेस ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स, इसको बनाने वाले एलिमेंट कौन कौन से हैं? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. तो इनके मास लिख लेते हैं. द मास फॉर वन एटम ऑफ हाइड्रोजन इज 1 एंड मास ऑफ 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन विल बी 2, and here the mass of oxygen is 16, so it will be 2:16. on simplest form 1:8. इसका मतलब ये हुआ आप वाटर चाहे जहाँ से ऑब्टेन करें, means you can obtain water from anywhere. The ratio of masses of hydrogen and oxygen will be remain constant as 1:8. 1:8. It is this was law of definite proportion. Done. एक बार फिर से law of definite proportion. A compound is taken from anywhere. The ratios of masses of its constituent elements remain constant. For example, we take the example of water. In water, the constituent elements are hydrogen and oxygen. The mass of hydrogen is 2 and mass of oxygen is 16, and the simple form 1:8. Then आप कोई भी अगर CO2 आप कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, whether by exhaling or from the vehicles, the masses CO2 12:16 to the 32, means on simpling form 4 3s are 12 and 4 8s are 32, 3:8. आप कार्बन डाइऑक्साइड चाहे जहाँ से ऑब्टेन करें, उसमें जो कंस्टिट्यूएंट्स एलिमेंट है दैट आर कार्बन एंड ऑक्सीजन, उनका मास का रेशियो हमेशा यही रहेगा 3:. देन नेक्स्ट लॉ इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन. लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन. अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, थर्ड वन इज law of multiple proportion. Law of multiple proportion. According to this law, when two elements combine to form more than one compound, the ratio of masses of one element reacting to the fixed mass of other elements bear simple ratio. यानी जब भी दो एलिमेंट्स मिलेंगे और एक से ज़्यादा कंपाउंड बनाएंगे तो उनमें से किसी एक एलिमेंट के फिक्स मास से रिएक्शन करने वाले दूसरे एलिमेंट के मासेस में हमेशा एक सिंपल रेशियो होता है. मीन्स इसको लिख के देख लेते हैं. व्हेन टू
two elements combine to form more than two compounds, sorry, more than one compound. थोड़ी इसकी डेफिनेशन बड़ी है, लेकिन अगर आप इस तरह से समझेंगे तो सिंपल हो जाएगी. When two elements combine to form more than one compound, then the ratio of masses of one element reacting to the fixed mass of other element bear simple ratio. Understood? When two elements combine to form more than one compound, then the ratio of masses of one element reacting with the fixed mass of other element bear the simple ratio. This is law of multiple proportion. Taking an example, we know that when carbon and oxygen combine, they form two compounds. The first one is CO and the second one is CO2. Carbon monoxide and carbon dioxide. Now, when two elements combine to form more than one compound, दो एलिमेंट हैं, ये दोनों कंबाइन हुए और एक से ज़्यादा कंपाउंड बनाया. Done? Then the ratio of masses of one element reacting to the fixed mass of other element. अब इसमें यहाँ पर दो एलिमेंट है, किसी एक का मास हमको फिक्स करना पड़ेगा. फिक्स माने स्टेबल करना पड़ेगा. तो यहाँ पर 12, कार्बन का मास 12 होता है, ऑक्सीजन का मास हुआ 16, यहाँ पर 12 और रेशियो 32. यहाँ पर पहले से ही स्टेबल है, फिक्स है. किसका मास फिक्स है? कार्बन का. तो यहाँ पर 12 12, यहाँ पर भी 12. अब देखिए यहाँ पर इन मासेस में when two elements combine to form more than one compound, दो एलिमेंट्स से कंबाइन हुए, दो कंपाउंड बनाया CO और CO2. तो then the ratio of masses of one element reacting to the fixed mass. तो अब यहाँ पर फिक्स मास कौन? 12 कार्बन का. तो अब मासेस इनका रेशियो ये रहेगा, ऑक्सीजन के दो मासेस का रेशियो 16 एंड 32. तो 16 रेशियो 32. You can see that it is in simple ratio of 1:2. ये सिंपल रेशियो में. तो यही लॉ था कि when two elements combine to form more than one compound, then the ratio of masses of one element reacting with the fixed mass of other element bear the simple ratio. इसका एग्जांपल भी आता है आपका, क्वेश्चन भी आते हैं, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन का एग्जांपल लेके आते हैं. तो आपको करना क्या होता है कि किसी एक का मास, सपोज करो यहाँ पे 14 दिया है, 28 है और यहाँ पर आपका 16, 32.64 एंड 80. तो आपको करना क्या है, किसी एक एलिमेंट के मास को फिक्स कर देना. दैट मीन्स फिक्स नहीं, यहाँ पर 28 है, यहाँ पर 28, यहाँ पर 28, यहाँ पर 14 है. तो आपको क्या करना है, यहाँ पर भी 28 रहना चाहिए. तो क्या करेंगे आप, यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, इट विल बिकम 28. और यहाँ पर भी आपको करना पड़ेगा. तो 16 2 था 32. तो यहाँ पर हो गया 28, ये 28 हो गया. अब यहाँ पर नाइट्रोजन का मास फिक्स हो गया ना. डन. तो यहाँ पर ऑक्सीजन के मासेस क्या हो जाएंगे, 32, 64, 80. तो रेशियोज क्या हो जाएंगे, 1 1 एंड 64 था, 64 65. 1:4:5. तो सिंपल रेशियो है, वेरीफाई होते हैं. कौन सा ना, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन. डन है. नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज, तो आपको ये समझ में आया होगा, इसके एग्जांपल भी आते हैं बहुत. न्यूमेरिकल में ये होता है, डाटा दे देते हैं, उसके बाद आपसे कहते हैं कि these data verify that these data verify law of multiple proportion. और डाटा दे देंगे और वेरीफाई कहेंगे आपसे कि वेरीफाई करिए कि लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन को वेरीफाई करते हैं. कर लेंगे आराम से. अगर आप डेफिनिट प्रोपोर्शन वाली बात करते हैं तो सीधी सी बात है, आपका कंपाउंड का सोर्स बहुत सारे दिए होंगे कि एक कंपाउंड यहाँ से निकला, एक कंपाउंड वही कंपाउंड फिर वहाँ से निकला उस रिएक्शन से. लेकिन तीनों रिएक्शंस में आप देखेंगे किसी उनका जो मासेस का रेशियो है वो सेम रहेगा. अगर सेम है तो वो किस लॉ को वेरीफाई करेंगे, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन को. डन है. और अगर सीधी सी बात है, अगर बहुत सारे
एलिमेंट, दो एलिमेंट्स के बहुत सारे कंपाउंड है तो किसी एक का मास फिक्स कर देंगे तो दूसरे एलिमेंट्स के मासेस में सिंपल रेशियो आ जाएगा। आते हैं गैलुसैक्स लॉ। गैलुसैक्स लॉ, गैलुसैक्स ने एक लॉ कहा था कि whenever gases combine they their volumes are in simple ratio, या गैस कंबाइन हो या फिर फॉर्म हो, प्रोड्यूस हो, whenever gases combine to form new gas or production of gases happen, then they do so in a simple volume, in a simple ratio, their volumes are in the simple ratio। डन है। और सीधा सा इसका एग्जांपल है H2 plus O2 gives H2O, on balance it is 2H2O। तो अकॉर्डिंग टू गैलुसैक ने कहा था कि ये जो H2O2 और 2H2O इनके वॉल्यूम में सेम होंगे। जैसे मीन्स यहाँ पे देखिए आप 1 आ रहा है, यहाँ पर भी 1 आ रहा है, तो 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन when react with 1 volume of oxygen it gives how much? 2 volume of water, 2 volume of water means 1 volume and 2 volume। if we take amount in amount ml or liter, तो 1 liter of hydrogen when react with 1 liter of oxygen it form 2 liter of water। it was गैलुसैक लॉ। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं गैलुसैक लॉ। whenever gases combine they do so in simple ratio, they do so in a simple ratio। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक है आपका गैलुसैक लॉ के बाद अवोगाड्रो लॉ। एक्चुअली जो अवोगाड्रो लॉ है ये भी गैलुसैक का ही मॉडिफाइड फॉर्म है। उन्होंने कहा था इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, लिख लेते हैं इसको, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस should contain equal number of molecules provided at same temperature and pressure। it means if we take same volume of gases then they have same number of molecules at constant temperature, at the same temperature and pressure। एग्जाम्पल भी लेते हैं गैलुसैक लॉ का। H2 plus O2 gives 2H2O, 1 volume and 2 volume। it means that the number of molecules in 1 volume of H2 will be the same as 1 volume of oxygen, will be the same as 2 volume of water। यहीं से मोल कॉन्सेप्ट्स का आइडिया निकल के आया है। मोल कॉन्सेप्ट्स और मोलर मास, तो उसको हम लोग नेक्स्ट लेसन में पढ़ेंगे या नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी हम लोग लॉज ऑफ कॉम्बिनेशन कर रहे थे। अवोगाड्रो लॉ, 3 लॉ के बाद ये 5th लॉ था। सॉरी, पहला था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, वो आप लोग समझ चुके हैं कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, या अगर दूसरे फॉर्म में कह लें तो व्हेनेवर केमिकल रिएक्शन प्रोसीड द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट बिफोर द रिएक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट आफ्टर द रिएक्शन। सेकेंड लॉ था आपका लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। अकॉर्डिंग टू दैट लॉ a compound is taken from anywhere, the ratio of masses of the elements, their constituent element remain same। The third law was law of multiple proportion। According to that law, when 2 elements combine to form more than one compound, then the ratios of masses of one element react to the fixed mass of other element remain same, yeah, be a simple ratio। Third was your fourth law was Gay-Lussac's law। What was that? Whenever gases combine they do so in a simple ratio। And the fifth one is Avogadro law। it states that equal volume of all gases have same number of molecules at same temperature and pressure। एक लॉ और एक और बात, यहाँ पर आपकी एनसीईआरटी बुक में इसकी मीन्स ईयर भी दिए हैं, कब ये गिवन था, बहुत मैटर नहीं करता। अगर आप चाहें तो उससे देख सकते हैं, लेकिन अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो आप वीडियो पॉज करके इसको बना सकते हैं। एक और हेडिंग है आपके लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में ही, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। एक्चुअली वो आप क्लास 10th में भी पढ़ चुके हैं।
9th में या 10th में पढ़ चुके हैं, एटम में पढ़ा था, लेकिन एक बार फिर से उसको रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। रिवाइज करने में कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। तो देखते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। Actually, why it is so important? It is important because the first theory on atom means एटम के बारे में पहली थ्योरी यही थी, दैट इज इन 1808। यहाँ पर हम आपको ईयर बता दे रहे हैं क्योंकि ईयर यहाँ पर मायने रखता है, लेकिन आपको यू विल वंडर दैट इन इंडिया 1808 मीन्स बिफोर 2000 years ago, Dalton 2000 or 3000 years ago, महर्षि कणाद वर देयर, महर्षि कणाद बिफोर 2000 or 3000 years ago, Dalton, महर्षि कणाद वर देयर, he told us that every substance is made up of small particle called परमाणु। डाल्टन ने तो बाद में बताया, बहुत बाद में। चलिए, वी प्राउड टू बी एन इंडियन। पहला नंबर इसका ये डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का, इन्होंने जो बताया था कि एटम इज इनडिविजिबल। एटम इज, ये आप लोग, मैं ऐसे ही आपको समझा दे रहा हूँ, एटम इज इनडिविजिबल मीन्स एटम को आप डिवाइड नहीं कर सकते। लेकिन ये लॉ इनका बाद में 20th सेंचुरी में मोजले और नील्स बोर ने इसको गलत साबित कर दिया था कि एटम इज डिवाइडेड इनटू, आप भी जानते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इन्होंने कहा था एटम इंडिविजिबल है, लेकिन बाद में 20th सेंचुरी के आते आते ये प्रूव हो गया कि एटम इज डिविजिबल इनटू सब एटॉमिक पार्टिकल्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। सेकेंड लॉ जो इन्होंने बताया था कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स आर सेम इन एवरी रिस्पेक्ट, वेदर इट बी मास, शेप एंड साइज। शॉर्ट में बोल देते हैं, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स आर सेम इन एवरी रिस्पेक्ट, with respect mass, shape एंड साइज। इसी के साथ ड्रॉबैक भी पढ़ लेते हैं, ये फेल हो गया। रीजन क्या था? इन्होंने कहा था एटम ऑफ सेम एलिमेंट्स, यानी किसी एक एलिमेंट के सभी एटम जो हैं उनका शेप, साइज और मास सेम होगा। लेकिन अगर हम लोग देखें आइसोटोप्स जो होते हैं वो एलिमेंट होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर, आइसोटोप्स आर द एटम ऑफ सेम एलिमेंट। आपने पढ़ा भी होगा, लर्न भी किया होगा। एटम्स, आइसोटोप्स क्या होते हैं? एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट which have same equal atomic number but different atomic mass. Here it is protium, deuterium and tritium, proton, neutron and triton. हाइड्रोजन के लिए आइसोटोप्स हैं, लेकिन इनका मास अलग अलग है। तो डाल्टन का लॉ तो गलत हो गया ना ये वाला। डाल्टन ने क्या कहा था कि एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स आर सेम इन एवरी रिस्पेक्ट, मास, शेप एंड साइज। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि एटम है ये एक ही एलिमेंट के, हाइड्रोजन के, लेकिन इनके मासेस अलग अलग। तो साथ में ही पढ़ लीजिए आप। थर्ड, इन्होंने इसकी उल्टी बात कही थी, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट इन मास, शेप, साइज। यानी डिफरेंट एलिमेंट्स के जो मास होते हैं, डिफरेंट एलिमेंट के जो एटम होते हैं, अलग अलग एलिमेंट्स के एटम वो मासेस में अलग अलग होते हैं। फिर ये बात झूठ साबित हो गई, किस वजह से? कि हम लोग आइसोबार्स को जानते हैं। क्या जानते हैं लोग? आइसोबार्स। आइसोबार्स क्या होते हैं? एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट विच हैव डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम एटॉमिक मास। फॉर एग्जांपल 18 आर्गन 40, 18 आर्गन 40 एंड 20 Ca40, 18 आर्गन 40 एंड 20 Ca40। आप इन दोनों को देखिए, ये अलग अलग एलिमेंट है ना, ये आर्गन है और ये क्या है? कैल्शियम। आर्गन का यहाँ पर एटॉमिक मास कितना है? 40, और कैल्शियम का एटॉमिक मास क्या है? 40। तो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, दे आर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट बट दे हैव सेम एटॉमिक मास। है, तो डाल्टन की ये भी बात गलत। लेकिन फोर्थ बात जो इनकी थी कि व्हेन एटम कंबाइन, व्हेन एटम्स कंबाइन दे फॉर्म, ध्यान दीजिएगा, दे फॉर्म कॉम्प्लेक्स एटम, दे फॉर्म व्हाट?
कॉम्प्लेक्स एटम। जब एटम कंबाइन होते हैं तो क्या बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स एटम। ये बात इनकी सही थी। और जो लास्ट आपके पॉइंट वो भी आप याद कर सकते हैं, एटम कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी destroyed। एटम कैन neither be created nor be destroyed। इसी पे आपका बेस्ड है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जो पहला भी हमने पॉइंट पढ़ा था, पहला लॉ पढ़ा था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, वो डॉल्टन्स के लास्ट लॉ के लिए इसको फर्स्ट भी कह देते हैं, एटम्स कैन neither be created nor be destroyed। ठीक है, तो ये आप आज की क्लास थी आपकी लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। आपने लॉज पढ़े हैं, डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी पढ़ी है, इसको अच्छी तरह पढ़िए, इसको अपना कॉन्सेप्चुअल बनाइए, कॉन्सेप्ट बनाइए इस पर। और बेसिकली आप इम्फेसिस योर इम्फेसिस शुड ऑन टू लॉज, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन एंड लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। इससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बनता है। ठीक है, तो आप लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन एंड लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन आपको याद भी होगा, अगर फिर से देख लीजिए, अगर आपको वीडियो को फिर से देख लीजिए। लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन था कि व्हेन अ कंपाउंड इज टेकन फ्रॉम एनीवेयर, या कंपाउंड इज टेकन फ्रॉम एनीवेयर, द मासेज ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट बी अ सिंपल रेशियो। तो हमने एग्जांपल दिया था आपको वाटर का, आप CO2 का भी ले सकते हैं, CO2 का भी दिया था हमने आपको। देन स्टूडेंट्स, तो ये थे 5 लॉज और डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आपको अच्छे से वीडियो आगे भी मिलते रहें। मैं इस पूरी 11th की केमिस्ट्री को बहुत ईजिली और 12th की केमिस्ट्री को मैं साथ ही साथ लेके चलूँगा, बहुत ईजिली से आपको समझाता हुआ चलूँगा। कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको लर्न कर लेनी चाहिए, मैंने बता दिया आपको, एटॉमिक नंबर, सिंबल और एटॉमिक वेट। ठीक है, वो भी मैं धीरे धीरे इसी चैनल पे कहीं पर इसी भी वीडियो में कहीं ना कहीं बता दूँगा। ठीक है, मैं इसके बाद आपका वीडियो बनाऊँगा मोल कॉन्सेप्ट एंड इट्स न्यूमेरिकल एंड स्टोइकोमेट्रिक। ठीक है, तो टिल देन थैंक यू।